इसे हटाना नहीं, इसे हटाना है, इसे कट इसे हटा दे, इस प्रेजेंटेशन को बंद कर। दो इसे बंद कर, इसे ये बंद कर, ये चाहिए और हेल्प भी चलाना है। चल जाएगा स्क्रीन कौन सी बस छोड़। बढ़ेगा कैसे आगे, स्क्रीन कैसे बढ़ेगी? Hello everyone, and welcome to the today's session, how to identify your trades. And before beginning this session, I and Elite family wishing you a very happy new year, and may God bring you a lot of happiness through good health and good wealth. And now I like to give you my brief introduction about myself. And my name is Israel Suhail Khan, and working as a senior technical and derivative analyst. And I'm into this industry from last 12 years. And I have seen and track all the different phases of the market in last 1 decade, right? So using various pattern and technical indicator has helped us to create immense wealth. So today session is also about the chart pattern, right? Now moving on the today's topic, how to identify your trades with the use of chart patterns, right? So, and one thing more, after this session, we'll have a Q&A session, right, for 15 minutes. So if you have any queries regarding any stocks and regarding about this webinar, regarding about the chart pattern, so definitely we'll attend this session, right? So in the last 15 minutes, we'll have a Q&A session. So आपकी जो भी queries होगी, we'll discuss over there, right? So let's start with the chart pattern. What is chart pattern? And so as here mentioned, identify chart pattern is simply a system for predicting stock market trend and turns, right? So देखिए chart patterns basically it's a mixture of price behavior and volumes, right? It's a mixture of price behavior कि price action जिस तरीके से market में create होता है,
in any financial instruments, either we talk about stock, either we talk about forex, about either we talk about the commodity markets, any financial instruments, right? So it's developed with the price action with the volumes, right? So हम लोग चार्ट पैटर्न्स को विद एग्जांपल भी थोड़ा सा सेट करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे, कब और कहाँ पर डेवलप होते हैं, एंड उस चार्ट पैटर्न्स के थ्रू वेयर वी कैन फाइंड आउट our traits, right? our positive traits, right? जैसे कि हमें देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन टू बाय. इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि व्हेन टू बाय, राइट? सो थ्रू द चार्ट पैटर्न्स we determine that when to buy, right? So when we discuss about the chart patterns कि हम कब हमें खरीदना है, किस टारगेट्स के लिए खरीदना है, और when to sell, वो चार्ट पैटर्न्स के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है, एक हमारी पॉसिबिलिटीज निकल के आ जाती है कि स्टॉक्स को अगर हमने खरीद लिया है तो हमें उसे बेचना कहाँ पर है, राइट? तो विल डिस्कस अबाउट द टारगेट्स, विल डिस्कस अबाउट द एंट्री लेवल, विल डिस्कस अबाउट द कि उस पैटर्न्स का क्या पिक्चराइजेशंस है, किस तरीके से हम उस पैटर्न्स के थ्रू फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरकास्टिंग कर सकते हैं, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज चार्ट पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न्स में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं. एंड अर्लियर यस वी हैव ऑलरेडी डन अर्लियर 2 seminars regarding the trends and regarding the candlestick pattern. ये हमारा तीसरा सेमिनार है which is about the chart pattern, right? So let's move towards the chart pattern. I hope आप chart pattern समझ गए हैं कि क्या होता है. So let's first discuss about first chart pattern, that is a symmetrical triangle, right? Symmetrical triangle, I would say it's a very common chart pattern, right? सबसे पहले symmetrical triangle, it's a बेसिकली इट्स ए बुलिश पैटर्न, राइट? ये एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूशन मार्केट में बनता है. देखिए कॉन्टिन्यूशन मार्केट किसे बोलते हैं? जब मार्केट जैसे आज कल की मार्केट चल रही है, मार्केट इज कॉन्टिन्यूशन इन ए बुल ट्रेंड, राइट? मार्केट चले जा रही है. देखिए इंडियन मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप मार्केट चले जा रही है देन अगेन वहां पर एक हमें साइडवेज मार्केट भी देखने को मिलता है, एक स्लाइडली करेक्शन भी देखने को मिलता है. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द अप ट्रेंड, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, के मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने के बाद मार्केट में थोड़ा सा जब मार्केट साइडवेज होती है या मार्केट में स्लाइडली करेक्शन होता है तो हमें उस दायरे में रह के उस चीजों को देखते हुए हमें फिर जब वो कंसोलिडेशन ब्रेक करता है, हमें ये पता है कि स्टॉक का अप ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू है, बट मार्केट में अब कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है, या मार्केट में अब जब वो कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होने के बाद हमें स्टॉक में कब बाय करना है, ये हमें सिमेट्रिकल पैटर्न्स के थ्रू पता चलता है, राइट? सो दिस इज ए सिमेट्रिकल पैटर्न, दिस इज ए बुलिश पैटर्न इन नेचर. जनरली हम इसे बुलिश पैटर्न ही कहते हैं. मैं आगे आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा. आप ये देख रहे हैं, ये देखिए बेसिकली दिस इज ए अप ट्रेंड इन द मार्केट, एंड अप ट्रेंड के बाद मार्केट में स्लाइडली ये देखिए मार्केट में कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है, एक स्लाइडली करेक्शन है, देन अगेन मार्केट गोज अप, देन अगेन मार्केट गोज डाउन, देन अगेन अप, राइट? सो दिस इज ए सिमेट्रिकल पैटर्न. एक मिनट रुकिए, मैं आपको साथ में चार्ट्स के साथ भी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसमें कि हम कैसे बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न को. आई होप ये दिस इज ए फैल्कन बेसिकली जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर चार्ट्स के लिए यूज करते हैं, right? So I'll give you one example. See, this is a SBI, right? SBI का ये डेली चार्ट है, एंड ये देखिए इस पैटर्न में एक SBI कॉन्टिन्यूशन एक अपर मोड में था, देन अपर मोड के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, राइट? देखिए कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक को किस तरीके से बाय करना है, जब हमें हायर पीक से जब हम सिमेट्रिकल पैटर्न की बात करते हैं ना, सो हमें बेसिकली जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में यहाँ पर दिखाया, सो ये दिस वन जो हम हमेशा सिमेट्रिकल पैटर्न में एक अप ट्रेंड चलने के बाद जो हायर हाइज एंड हायर लोज
ये हायर लोज, दिस इज हायर लोज को हम कनेक्ट करते हैं, एंड ऊपर जो हायर हाइज है एंड हायर लोज है उसे कनेक्ट करते हैं, राइट। हम जो प्रीवियस वन का जो हाई है एंड जो उसके नियरेस्ट प्रीवियस वन है उसे हम कनेक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज ए सिमेट्रिकल पैटर्न। ये देखिए, ये लेटेस्ट एग्जांपल्स है एसबीआई का। Just audio connection restore. Okay. Sorry, audio was got disconnected. I hope now it's clear, huh? We are talking about the symmetrical pattern. So this is a SBI, right? And we connect over the high, yeah, right? ये जो हमारा हाई है, इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करेंगे, और जब तक स्टॉक इस जंक्शन में ट्रेड कर रहा है, राइट, इस जंक्शन में ट्रेड कर रहा है, वी डू नॉट बाय, राइट, अंटिल अनलेस हमें जब तक ये सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट्स नहीं मिलता। मैं आपको और क्लियरली मैं अपने सॉफ्टवेयर पे भी समझाता हूँ आपको, राइट। Just a moment. So we'll take example of Relaxo, right? Relaxo is very latest example. See, uh, this is a Relaxo, right? And this is a daily chart, right? This is a daily chart of the stock. So आप ये देखिए, स्टॉक इज कॉन्टिन्यूसली ट्रेडिंग इन ए रेंज। आप ये देखिए, ये रेंज ये कब से है ये स्टॉक? This stock is trading in a range. See, 10 June 2020 से continuously stock एक range में trade कर रहा है, और range कहाँ पर है ये आप ये देखिए, नवंबर तक stock was into a range, मतलब within a 6 month stock was we did not make any money. Even if anybody got buy the stock, but nobody is making money in this stock, right? So with a time frame of 6 months. But when you see this breakout, right, this is a latest example of symmetrical pattern, right? This is a very latest example of symmetrical pattern. And jahan is stock ne breakout दिया, this breakout was around 710 720 के आसपास, and now stock is trading around 832, and with a time frame of hardly 1 month, right? So देखिए, आपको चार्ट्स के थ्रू, आपको टेक्निकल्स के थ्रू ये पता चल जाएगा कि बॉस, दिस इज माय बेस्ट स्टॉक, आई वांट टू बाय दिस स्टॉक, बट व्हेन टू बाय ओनली चार्ट विल टेल यू, राइट, कि व्हेन टू बाय। सो एंड एट शॉर्ट टाइम में ही आपको, अगर सपोज करिए आपने ये स्टॉक यहाँ खरीद लिया होता, 6 महीने के लिए आपका पैसा ब्लॉक है, राइट, यू डिडंट मेक एनी मनी, बट यू नो कि नाउ दिस इज ए ब्रेकआउट लेवल, एंड नाउ आई शुड एंटर इनटू दिस स्टॉक, right? So then you can see the return, right, कि हमें 20% का रिटर्न विद इन ए मंथ मिल गया। So this is a very latest example of symmetrical pattern, right? And जहां पर हमें बाय करना है, वी टॉक टारगेट लेवल की बॉस, दिस एरिया। देखिए, ये स्टॉक चलने ऊपर जाने के बाद नीचे भी आया, बट इट्स नेवर कम डाउन बिलो द ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जब हम स्टॉप लॉस रखते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसका लो, इसके नीचे अगर स्टॉक दोबारा बंद हो जाता है, तो वी शुड एग्जिट द स्टॉक। आई मीन, माइट बी स्टॉक अगेन कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, बट जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इट्स मीन स्टॉक इन ए अप ट्रेंड, ब्रेकआउट इज कंफर्म, एंड हमें उस टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। एंड टारगेट्स, अगेन आई विल टेल यू कि अगर हम टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें, देखिए, जो ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना है ना, उस सिमेट्रिकल पैटर्न का हाईएस्ट रेंज जो बेसिकली रेंज है, ये देखिए, यहाँ से ये पैटर्न डेवलप शुरू हुआ इस लेवल से, दिस इज 800, एंड ऑन ए लोअर साइड दिस इज 500, right? So 500 and 800, the difference is 300. 300 rupees will add 300 rupees into this 800, so it's come around 1100. I hope you understand कि मैंने कैसे ये टारगेट्स कैलकुलेट किया है,
राइट। जो हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न्स का जो भी हाईएस्ट रेंज है, दिस इज ए रेंज, राइट। यहाँ से पैटर्न ने डेवलप होना शुरू किया, तो दिस एरिया वाज 800 एंड लोअर साइड इफ यू विल सी this is a 500 level, right? So 500 800, the difference is 300, right? So we'll add 300 into 800, right? Higher level पे हम 300 और add कर देंगे, तो it's comes around 1100, right? It's come 1100. So now we are expecting कि in a not in a short term, yes, but जितना इस फ्रेम में इस स्टॉक ने लिया है टाइम, आने वाले एक साल के अंदर we can expect कि relaxo can move towards the 1100. तो we always suggest कि this stock is buy on dips, right? हमेशा buy करना है until unless ये breakout, ये दोबारा से 700 के नीचे नहीं जाता है, right? And our target is 1100. So this is the latest example of symmetrical triangle. I hope you understand कि हम symmetrical triangle को कैसे देखते हैं। ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। देखिए अप ट्रेंड में बनने के बाद हमेशा मार्केट में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन होने के बाद हमेशा एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक फिर अगेन ब्रेकआउट आता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेकआउट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। और मैं आपको पेंट पे भी थोड़ा सा मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली हाउ वी राइट। So suppose this area, right? When stock is trading into this range, we should not buy, right? We should not buy. This is a symmetrical pattern, and you can find in lot of stocks. If you analyze on the charts, you will find that this pattern has occurred in lot of charts, right? So this area, when stock has broken this area, then I should buy at this level, right? So this is the buying level, and the target level should be this one and this one, the difference of this one and this one. This one means agar suppose ye level iska highest level is 100 rupees and this area is 80 rupees, so I would say, and this area is 90 rupees, right? So I would say 100 or 80 is difference is 20, so we add 20 rupees at 100, right? So it's mean it's become 120. So I am expecting that this stock can move till 120 rupees, right? So I will buy this stock at this level. So this is a very clear example of symmetrical pattern, right? And it's a continuation pattern. I hope you understand, right? So let's move to the next pattern. So I hope symmetrical pattern is clear. And now we'll move to the rectangle, right? So second pattern is a rectangle pattern. See, rectangle pattern is also a continuation pattern, first of all, right? ये भी uptrend में ही बनता है. This is one of the, again this is one of the consolidation zone की जब stock एक uptrend के बाद consolidation zone में चला जाता है और consolidation zone जब break करता है, then we should enter this stock, right? So as definition mentioned कि the pattern is defined by the two comparable highs and two comparable lows, right? देखिए आपको high से high, ये जितने भी हम patterns today will discuss, whatever we will discuss about the patterns, so we connect only high to high and low to low, right? So two parallel lines are drawn at the top and on the bottom, right? जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में देखिए एक अप ट्रेंड चला, स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज शुरू हो गया, राइट? कंसोलिडेशन फेज शुरू होने के बाद और जब तक ये कंसोलिडेशन आइदर साइड ब्रेक नहीं करता, देखिए मैं इफ आई एम ए बायर तो आई वुड बाय ओनली अबव दिस लेवल, राइट? आई हैव टू बाय अबव दिस लेवल ओनली। अगर मैं देखिए जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं करता, सपोज अगर मैं विदाउट ब्रेकआउट्स में स्टॉक को बाय कर लूं, देन अगेन इट स्टॉक केम डाउन, again its stock goes up but it didn't cross this level and again it's came down. So rectangle pattern will show us ki boss when to buy this stock, right? So I'll give you some example also. See, this is a Adani port. It's a daily chart, right? It's a daily chart जो कि daily chart में एक consolidation चल रहा है स्टॉक के अंदर, right? मैं आपको इसे चार्ट पे और क्लियर करके दिखाता हूँ। See this, देखिए एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज शुरू कर दिया, राइट? ये कंसोलिडेशन अपर साइड में कितना है,
390 रुपीज एंड डाउन साइड में 310 रुपीज। ये देखिए जब भी स्टॉक ये यहाँ गया, देन अगेन इट्स गोज अप, देन अगेन इट्स केम डाउन, अगेन इट्स गोज अप। इस लेवल पे भी देखिए, ये देखिए इसने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन अगेन इट्स केम डाउन, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इसका इसे हाई लोज कैसे टच करते हैं, मैं ये चीज और दिखा दूं आपको। सी दिस इज ए टूल एरिया, आई होप कि एवरीबॉडी इज नो कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जो भी हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन का मोड है वो दिस एरिया, राइट। तो आई विल टेक दिस हाई एंड आई विल कनेक्ट फ्रॉम दिस हाई, राइट, एंड अगेन एंटर। सो दिस एरिया is a rectangle for the upper level. On the lower level, जो मेरा lower highs मुझे connect करना है, see this one, right, and I would connect to this one, right. So see, there are two type of trades. One is when a stock is coming down nearest to the lower slope, then I should buy until unless this doesn't broke on the lower level. And second trade is I would buy when it's broke upper level, right. देखिए दो तरीके हैं, एक तो नीचे आता है, अगर ये लाइन क्रॉस नहीं करता है नीचे की तरफ, आई वुड बाय, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल है और स्टॉक दोबारा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो until unless इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आई वुड नॉट बाय। आप ये देखिए इसके अंदर इसका टाइम फ्रेम देखिए, ये यहाँ से इट्स ए जुलाई, 3 जुलाई को शुरू हुआ एंड नवंबर, ऑलमोस्ट 6 months, 6 महीने स्टॉक वाज इन ए कंसोलिडेशन जोन, राइट। एंड आफ्टर द नवंबर 25th इट हैज गिवन ए ब्रेकआउट, एंड उस ब्रेकआउट के बाद विद इन ए मंथ यू कैन सी द रिटर्न। 400 से स्टॉक आज 520 रुपीज, ऑलमोस्ट 25%, almost 25% within a month, right. So when you analyze the pattern, when you are looking the charts, so it shows you ki what's when to buy, right. This is the right time to buy and this is the right time to exit, right. अब देखिए इस पैटर्न का भी अगेन आई वाज सेइंग कि हमने जैसे उसमें टारगेट का बेस लिया था, इसका भी ये जो हाईएस्ट रेंज है ना इस पैटर्न का, रेंज वाज अपर साइड क्या है 400, 380 एंड लोअर साइड क्या है 295. It's almost coming 110. Difference is 110, right? अभी डिफरेंस समझ रहे हो ना, मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अपर साइड हम वी आर टेकिंग 180 और जो लोअर साइड है इट्स ए 290 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इट्स कम अराउंड 100 रुपीज। तो अगर इफ वी ऐड 100 रुपीज इंटू 380 तो इट्स कम 480। देखिए स्टॉक ने 480 कितनी जल्दी पूरा किया, ये देखिए 480, ये देखिए डॉट 480 करने के बाद स्टॉक ने करेक्शन भी लिया। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि बॉस 480 के आसपास दिस इज माय एग्जिट लेवल, आई शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, नाउ टारगेट हैज बीन अचीव, राइट। देखिए 25% का रिटर्न इज नॉट ए स्मॉल रिटर्न, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड यहाँ पर मुझे स्टॉक से निकलना है और देखिए 480 का हाई लगा के स्टॉक दोबारा करेक्ट हुआ 430 तक। तो इट्स मीन ये चार्ट का ही इम्पैक्ट है स्टॉक पे कि एक बार टारगेट हो गया है तो माइट भी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए और अगेन स्टॉक ने दोबारा, क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। बाय माय टारगेट हैज बीन डन, राइट, माय एक्सपेक्टेशन वाज हैज बीन डन, राइट, कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक से वो मेरी फुलफिल हो गई है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रेक्टेंगल पैटर्न एंड ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को कि रेक्टेंगल पैटर्न में हम कैसे देखते हैं, कब बाय करना है, कब नहीं बाय करना है, right. Now next to the, let's move to the next pattern. This is a ascending triangle, right. So it's quite confusing for the beginners basically कि symmetrical भी इसी तरीके से होता है, ascending भी इसी तरीके से होता है, descending भी इसी तरीके से होता है, बट नहीं। देखिए हमने अभी पीछे बात किया रेक्टेंगल, जो दोनों लाइनें होरिजेंटल थी, अपर लाइन भी लोअर लाइन भी, एंड जब हम सिमेट्रिकल की पैटर्न की बात कर रहे थे तो सिमेट्रिकल में देखिए इस तरीके का डेवलपमेंट था, ये सिमेट्रिकल बना हुआ था, राइट, इसमें। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल्स में भी इक्वेशन ये होती है, अपर जो अपर रेजिस्टेंस होती है इट्स ए हॉरिजॉन्टल एंड जो लोअर होती है इट्स ए हायर हाइज, इट्स ऑलवेज मेक ए हायर हाइज, राइट। सो इट्स ए बुलिश पैटर्न। जब इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं आप कहेंगे कि सर ये स्टॉक माइट बी
यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, then we should not buy this stock. Simple, right? If a stock, but out of 100, there is a more than 80 to 90% probabilities कि stock will give a breakout on a upper side, right? ये डाउन ये आपको ब्रेकडाउन नहीं देगा स्टॉक कि अगर ये स्टॉक यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, then what we should do? It's mean it's not a buy. It's a wait and watch situation, right? But if a stock will cross this upper resistance, then we should always buy, right? So this ascending pattern is also a bullish pattern. I would say when it's breaking the upper side resistance, we should buy. मैं examples के साथ आपको समझाता हूँ. देखिए ये SCL Tech है. अब देखिए SCL Tech में ये SCL Tech में what we are doing? SCL Tech, देखिए ये upper line is a horizontal line and this area is a higher tops, right? The stock is continuously making higher lows. ये low बनाया, then again stock came down and again stock came up, right? So basically, and जब stock ने ये upper side का resistance cross किया, right? ये upper side का resistance cross किया, so this stock gone up, right? और इस और जो ये एरिया है और ये एरिया है, इसका जो डिफरेंस है उसका हम टारगेट इसमें ऐड कर देंगे. सपोज करिए ये 200 रुपए का रेट है, ये 100 रुपए का रेट है, तो डिफरेंस ऑफ 200 and 100 इज 100 rupees. तो वी ऐड 100 rupees into 200, तो आवर टारगेट विल बी 300 rupees, राइट? तो नाउ स्टॉक इज गोइंग अप, तो वो क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक ने अपना टारगेट किया है, राइट? सो आपको अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल्स की भी बात करें, आई थिंक ये पीछे डाबर में भी बना था इस तरीके का पैटर्न, राइट? डाबर में भी डेवलप हुआ था. वेट मैं शो करता हूं. Wait, just a moment. I'm watching this. Right. See, this is a symmetrical pattern, and this one is. See, this pattern is not into Dabur, but yes, जो हम पीछे बात कर रहे थे SCL Tech में, I hope you understand कि SCL Tech इस पैटर्न को हम कैसे एनालाइज करते हैं, right? This is ascending triangle, right? And we have seen into this, right? कि SCL Tech is also is one of the example. And Dabur में भी see, देखिए ये performance बन रही है. There are a lot of things. I need to remove all these things. Just a moment, right? If you'll see this area, so this is. Right, see, if you drop a trend line over there, right? So this area, right? If a stock, this is kind of horizontal, right? So this area, agar stock will cross 550, right? So then again we are expecting कि stock can move up to 650, 620 level, right? Because this area and this area would be a target, but still देखिए लाइव एग्जांपल्स हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अभी भी देयर इज ए रेजिस्टेंस अराउंड 550. अगर स्टॉक 550 का लेवल क्रॉस कर जाता है एंड उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो वी शुड बाय दिस स्टॉक, राइट? एंड वी शुड कंटिन्यू टिल एटलीस्ट 650 लेवल. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिमेट्रिकल असेंडिंग चैनल क्या है, कब हमें बाय करना चाहिए, राइट? तो आई होप कि आप लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि असेंडिंग क्या है, रेक्टेंगल क्या है एंड सिमेट्रिकल क्या है, राइट? And now let's move towards next pattern, that is a flag pattern, right? And it's a very common pattern in a uptrend, right? देखिए ये पैटर्न भी बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलता है जनरली जो अप ट्रेंड के स्टॉक में मिलता है, राइट? अप ट्रेंड के स्टॉक्स में आप बहुत ज्यादा ये देखने को मिलेगा. इसे फ्लैग पैटर्न इसलिए कहते हैं कि स्टॉक में एक देखिए ये स्टॉक में कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है. मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी स्टॉक में देखिए समटाइम इट्स हैपन कि किसी भी स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि स्टॉक 100 रुपए से 300 रुपए हो जाए, 400 रुपए हो जाए. वो 100 रुपए से 150 रुपए जाता है, 120 रुपए जाता है, देन इट टेक्स सम कंसोलिडेशन, देन अगेन इट्स मूव हाई,
राइट, माइट बी एक हफ्ते का कंसोलिडेशन है, 15 दिन का कंसोलिडेशन है, इल टेक, राइट। तो इसे हम फ्लैग पैटर्न इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप जो होती है फ्लैग की तरह होती है। ये देखिए, ये एक फ्लैग शेप में बना रहता है हमेशा, राइट। जो ये फ्लैग का जोन होता है माइट बी सम टाइम इट्स वेरी शॉर्ट टर्म और सम टाइम इट्स टेक सम टाइम, राइट। तो जो ये फ्लैग का टाइम है, ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में थोड़ा सा गिरना, कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। अब कंसोलिडेशन, हम अपर जोन से ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे, लोअर जोन पे ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और जहां पर ये देखिए दिस एरिया इज अ ब्रेकआउट लेवल, राइट, दिस एरिया इज अ ब्रेकआउट लेवल, कि जहां पर इसने फ्लैग का ब्रेकआउट दिया देन इट्स कंटिन्यूअसली गोस अप, राइट। मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। सो दिस इज अदानी इंटरप्राइजेस, वो डेली चार्ट है, मैं आपको फैल्कन पे समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब ये देखिए, देखिए मैंने बहुत सारे खींचे हुए हैं इस पे। देखिए ये एक स्टॉक का मैं कंटिन्यूस, मैं ये हटा देता हूँ एक बार, जस्ट मोमेंट, let's see, this is Adani Enterprises and this is a daily chart, right? Stock is continuously going up, going up, going up, and after a big move, now stock in a consolidation mode, right? Stock in a consolidation mode. This is a clear example of flag. If you will see a trend line, we'll drop a trend line over here, right? And then we connect a nearest high, this one, right? This one, understood? And on a lower side, we again connect this area, right? So this is a flag pattern, and when we connect, and this area is a breakout level, this area is a breakout level. So we should buy when stock in a uptrend, and stock then again stock moves towards the consolidation mode, yeah, slightly correction mode. So when stock cross this level, then we should buy this stock. Okay, uptrend mein I would say we should always avoid a short selling. I always avoid a short sale. But stock का clear uptrend चल रहा है, तो stock में हमें देखना है कि stock में हमें buy कहाँ करना है। देखिए this area was the buying level जब ये upper side में trend line का breakout आया। So this is called flag pattern, right? And then again stock 290 से again stock 340 335 तक गया, and like 330 के 5 के बाद again stock in a consolidation mode. ये 10 से 15 दिन का consolidation है। अगर आप again देखिए, यहाँ से आप जहां से कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, यहाँ से अगेन आप ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि बॉस वेइंग टू बाय दिस स्टॉक। एंड देखिए ये कंसोलिडेशन होता रहा स्टॉक के अंदर, एंड आपने जब ये लेवल क्रॉस किया स्टॉक में, दिस एरिया, देन यू शुड बाय। सो दिस इज अनदर फ्लैग जो स्टॉक ने बनाया है। एंड उसके बाद ये देखिए दिस एरिया वाज 330, एंड देन स्टॉक कंटिन्यूअसली इज गोन अप टुवर्ड्स द 400 लेवल, right? So flag patterns will tell you कि बॉस कंसोलिडेशन मोड में जाते वक्त हमें मार्केट में बाय नहीं करना है, या तो फिर अगर बाय है तो वी कैन होल्ड इट, लेकिन अगर मुझे फ्रेश बाय करना है तो आई वुड बाय व्हेन स्टॉक विल गिव द ब्रेकआउट। So this is a flag breakout, and this is a very clear examples, and I think there are a lot of example of flag breakouts. Right? Hello? So this is a very clear example of flag breakouts, right? So let's move. I hope you understand what is flag breakouts, and these are the examples of flag breakouts, right? So now we move to the next pattern, right, which is curve with handle. It's a very common pattern, right? It's a curve with handle. Generally, it's a very long-term pattern, right? But we should always discuss कि this is also a long-term pattern, और बहुत कम देखने को मिलते हैं ये patterns generally इस type के, but this is a very important patterns, right? So this is a curve with handle, जैसा नाम suggest कर रहा है curve with handle, तो ये cup की shape का होता है, this is cup, right? And this is a handle, राइट। सो आपको चार्ट्स के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। देखिए आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कभी नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर कि आपको डॉट
कप बन के आ जाए, जैसे या डबल टॉप हम बात करते हैं, डबल बॉटम हम बात करते हैं। डबल टॉप एम शेप का होता है, डबल बॉटम आपने बहुत सुना होगा टीवीओ पे कि स्टॉक ने डबल बॉटम की फॉर्मेशन करी है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, या स्टॉक ने डबल टॉप की फॉर्मेशन करी है तो स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पिक्चराइजेशन होगी, नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू find out कि this area is it's a kind of curve with handle, right? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, so we need to be very practical, right? कि हमेशा पिक्चर परफेक्ट नहीं रहेगी, we need to understand, right? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी जब आएगी when you are religiously following the charts, right? When you are religiously following the charts, so this pattern is a curve with handle. And just as a definition mentioned, a pattern on bar chart resembling a cup with a handle. The cup is a U shape kind of होता है, and handle shift towards a downward drift. जब वो shape के बराबर आके दोबारा एक correction होता है, slightly correction होता है, and then again stock goes up, right? So this shows the कि stock can if ये ब्रेकआउट, ये पूरे रेंज का ब्रेकआउट दे देता है कव विद हैंडल का, तो वी शुड बाय। सपोज करिए दिस एरिया वाज अराउंड, ये देखिए 42 का एरिया है एंड इसका लोअर साइड वाज 30, राइट? तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस टारगेट कि 32 and 42, इट्स ऑलमोस्ट 10 रुपीज, तो वी विल ऐड 10 रुपीज इनटू 42, तो आवर टारगेट विल कम अराउंड 54, तो वी शुड होल्ड दिस स्टॉक टिल 54, राइट? अब देखिए ऐसा नहीं है कि हमने 54 का नाम लिया और स्टॉक विद इन 10 डेज 54 आ गया, विद इन 5 डेज 54 आ गया। देखिए जब हम चार्ट्स की बात करते हैं ना, तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि बेसिकली जो प्रैक्टिकल नोबडीज नो कि वो माइट भी 54 2 दिन में भी आ जाए, 4 दिन में भी आ जाए और 4 महीने भी ले ले, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कि बॉस एक्चुअल में कितना दिन लगता होगा टारगेट्स को कंप्लीट करने में, सो आई वुड से जो बाइंग का टारगेट्स होता है इट्स क्वाइट स्लो देन द सेलिंग हमेशा बहुत फास्ट होती है। आप लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में कि विद इन ए डे सेलिंग जब भी होती है, सेलिंग के टारगेट्स बहुत जल्दी होते हैं, बट बाइंग में इट विल टेक सम टाइम्स, राइट? तो हम जब टारगेट्स निकालते हैं ना, तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो जिस टाइम फ्रेम में पिक्चराइजेशन हुई है, अंडरस्टूड, ये जो बेसिकली ये जो सपोज करिए अगर ये 6 महीने का टाइम लिया है इस पिक्चर को कंप्लीट करने में, तो इट्स मीन another 6 months it can take to achieve the targets. Are you getting my points? कि अगर ये मेरा ब्रेकआउट्स बना है और इस ब्रेकआउट्स पे मुझे बाय करना है स्टॉक को, तो अगेन आई नीड टू वेट एटलीस्ट 6 months. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 6 months, लाइक कि अगर ये पिक्चर हमारी 6 महीने के अंदर बनी है, तो देन अगेन फर्दर इसका टारगेट अचीव होने में another it can take another 6 months, right? एंड देन वो तो गॉड को ही पता है कि वो 6 महीने में करेगा या 6 दिन के अंदर करेगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 11 टारगेट्स की ये टारगेट्स कितना टाइम कितना ले सकता है, तो इट्स मीन जितना टाइम फ्रेम में पैटर्न्स डेवलप हुए हैं, आइदर जो पीछे भी हम चाहे सिमेट्रिकल की बात कर चुके हैं या रेक्टेंगल की बात कर चुके हैं या असेंडिंग की बात कर चुके हैं, जितना टाइम फ्रेम में वो पैटर्न्स कंप्लीट होता है उतना ही टाइम फ्रेम फर्दर ब्रेकआउट्स के बाद ले लेता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कव विद हैंडल किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपको अगेन कहा था कि आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कव विद हैंडल किसे कहते हैं हम लोग। देखिए दिस एरिया इज ए कप एंड अगेन दिस करेक्शन इज ए हैंडल। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा करेक्शन है, समटाइम्स जो हैंडल का करेक्शन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। मैं आपको और भी अभी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, राइट? बट दिस इज ए कप एंड दिस इज ए काइंड ऑफ हैंडल एंड दिस इज ए ब्रेकआउट लेवल। अंडरस्टूड? दिस एरिया इज ए ब्रेकआउट लेवल। ये देखिए दिस एरिया, अगेन स्टॉक नीचे आया बट इस एरिया के नीचे नहीं आया। अंडरस्टूड? जो ये एरिया है दिस एरिया इज ए हैंडल एरिया। तो माय टारगेट वुड बी, जो मैंने अभी टारगेट बताया आपको, इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। और देखिए ये इट्स गोन डाउन, देन अगेन इट्स गोन अप, देन अगेन, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसने इसका टारगेट भी किया है। हम लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो समहाउ देखिए टीसीएस में माइट बी इस तरीके की डेवलपमेंट्स हो, बट आई वुड से देखिए ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, ये भी टॉप पे बन जाता है। अगर आप इसे लाइन चार्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जस्ट मोमेंट, ये देखिए आप ये शेप देखिए, दिस इज ए कप एंड अगेन दिस इज ए हैंडल।
Understood? This is a handle area. I hope you understand. देखिए this is a curve and again this is a handle. तो जब हम कब अब देखिए ब्रेकआउट्स भी है स्टॉक में, तो इसका टारगेट्स हम क्या लेके चल सकते हैं 2800 ऑन ए अपर साइड एंड लोअर साइड इज ए 20, देखिए 2600, राइट 26, तो अभी 3000 का टारगेट बनता है। अगर 2600 में 3000 सॉरी ये है 2850, 2850 ऑन ए अपर साइड एंड लोअर साइड वी आर सेइंग 2600, तो वी एड 250 रुपीज इन 2850, तो टारगेट्स हमारा निकल के आता है 3100 रुपीज। तो स्टिल वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक, राइट? सो ये दिस स्टॉक कैन मूव हायर अप टू 3100 रुपीज। तो एनी डिप वी शुड बाय दिस स्टॉक, राइट? देखिए ये स्टॉक अगेन, ये देखिए कब तक आया था, अभी 2 दिन पहले स्टॉक में काफी करेक्शन हुआ था टीसीएस में, लेकिन देखिए ये कब, ये ब्रेकआउट लेवल है और उस ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं आया, ठीक है? ये देखिए दिस इज ए ब्रेकआउट एरिया, आपको ये दिख रहा होगा ना ये लेवल। सो एंड ये ब्रेकआउट लेवल अगेन स्टॉक गोज अप, राइट? सो अगर इसके नीचे आता है तो वी शुड अवॉइड द स्टॉक या वी शुड एग्जिट फ्रॉम द, वंस वी शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, otherwise we should hold for the target of 3100 या 3050, whatever it is the target, right? I hope you understand कि कब विद हैंडल क्या होता है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं बट वी हैव ए लिमिटेड टाइम एंड सो इसी वजह से हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दिस इज ए आल्सो ए बुलिश पैटर्न। देखिए अभी तक जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे वो दैट वाज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, दैट वाज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट? नाउ दिस पैटर्न इज ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, राइट? और वो हमेशा टॉप पे भी बन जाता था, कई बार हमेशा टॉप पे भी बन जाते थे, नीचे भी बन जाते थे, लेकिन दिस पैटर्न इन ऑलवेज ऑकवर्ड्स ऑन द डाउन ट्रेंड, ये हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ ही बनता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आपने बड़ा बड़ा कॉमन नेम है, आप लोगों ने सुना होगा कि हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये बुलिश पैटर्न है। देखिए हेड एंड शोल्डर किसे कहते हैं, जैसे ये दिस एरिया इज ए शोल्डर, जैसे आदमी को उल्टा कर दो, दैट काइंड ऑफ पैटर्न इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दिस एरिया इज ए शोल्डर and this is a head and this is a another shoulder, right? And this area is a neckline. तो this is a inverted head and shoulder and ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बॉटम के आसपास बनता है। अगर इस तरह की पिक्चराइजेशन कहीं पे चार्ट्स में होती है किसी भी स्टॉक्स में, any financial instruments, not about only stocks, any financial instrument, then we should buy this stock. and यहाँ से स्टॉक का हमेशा ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी है and then again stock up trend में चला जाता है, right? So this is a very fine example of inverted head and shoulder. Let's take example. देखिए ये स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, ठीक है? ये कैश का स्टॉक है, अभी लेटेस्ट ही इसने ब्रेकआउट दिया था। देखिए एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने बॉटम पे, देखिए दिस एरिया इज ए शोल्डर and then again it's a head and then again this is a second shoulder, right? and when stock has given this breakout, देखिए ये एरिया है जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। देखिए थोड़ा समझने की जरूरत ये है कि स्टॉक ने यहाँ भी ब्रेकआउट दिया था, इस सॉरी just a moment, this area, but stock didn't sustain above this level, so we need to at least 1 or 2 close above this level, right? हमें यहाँ पर इसके ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है, तो यहाँ ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, अगेन इट्स केम डाउन एंड देन फर्दर दिस एरिया, यहाँ पर स्टॉक ने हमें क्लोज दिया, राइट? तो ये क्लोज देने के बाद स्टॉक यहाँ से कॉन्टिन्यूसली इट्स गोइंग, understood? So neckline is our support area. Now this is our, we should buy above this stock, this is my stop loss and now I should hold this stock till the target. Targets हमें again उसी तरीके से निकालना है। ये हमारा शोल्डर जो एरिया हाईएस्ट लेवल ये है, लोवेस्ट लेवल ये, अगर हाईएस्ट लेवल ये 200 रुपए का है और लोवेस्ट लेवल हमारा 100 रुपए का है, तो इसका मतलब 300 रुपए, मतलब 100 रुपए का डिफरेंस, राइट? 100 200 minus 100 is 100. When we add 200 plus 100, it's become 300 rupees. So we'll take examples of PI industry, right? So another example, I think, I hope you understand कि PI industry कैसा है, and now the next pattern is double bottom, right?
one thing more, I mean, some receptions giving some questions also, right? So we'll take it after 5 minutes, all the questions, right? Let's first let's complete this webinar, then we'll discuss about the, then obviously we have a Q&A session, we'll discuss over there, right? So next, I hope you understand कि inverted head and shoulder, and देखिए inverted head and shoulder, I would say आपको latest example मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. See, मेरे को जो अभी मैंने find out किया है, I hope this is ITC, right? And yeah, this is a 60-minute chart. ये देखिए 60-minute chart में इस तरह की एक formation हो रही है, right? I hope this is a not a daily chart. This is a 60-minute chart, right? So अभी stock 213 के आसपास चल रहा है. So I am expecting कि again stock can give the breakout. Stock ने breakout दे दिया है, and I hope यहाँ से stock 230 235 तक stock जा सकता है, right? So the lower base is almost 198, upper base is almost 218. So it can almost जो targets हमारा निकल के आता है 235 240 rupees तक का हमारा target निकल के आता है. So this is a latest example of inverted head and shoulder. Then another example is BEL. If we check the BEL, right? So if you see this, another this area is a breakout, this is a shoulder, this is a shoulder, then again it's a shoulder, right? So ये stock ने भी breakout दिया 122 रुपए के ऊपर, again it can move to 145 level. So this is another example of inverted head and shoulder, right? So I hope you understand कि inverted head and shoulder क्या होता है. And let's move to next, double bottoms. See, देखिए double bottom is very common and very known chart pattern. Everybody's know, I think so, कि what is double bottom, right? ये W shape का हमेशा बनता है, and W shape का इसमें formation होती है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है. ये इसे बॉटम, डबल बॉटम ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा बॉटम के आसपास ही पाया जाता है. और जब भी फॉर्मेशन किसी भी स्टॉक में डबल बॉटम की होती है, सो इट्स ए साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, राइट? सो इट्स मीन अ स्टॉक कैन मूव हायर फ्रॉम दिस लेवल, एंड स्टॉक का जो हम टारगेट्स, अगेन देखिए ये जो डब्ल्यू शेप का इस तरीके का बना हुआ है, देन अगेन हम वही नेकलाइन लेके हम टारगेट्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो किस तरीके से होगा, और उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव लो होते हैं, एंड वो लो बिल्कुल डब्ल्यू शेप का होता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम, and I'll take one example. This is a Adani port, right? This is a Adani port, and this is a very clear example of double bottom, right? This is a very clear example of double bottom. I hope you understand कि ये double bottom का जो breakout है, ये देखिए, this is a neckline, and we buy when this shape has confirmed. Are you getting my point? And then again stock gone up. देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, इसने बिल्कुल बॉटम पे एक डब्ल्यू शेप बनाया, और डब्ल्यू शेप बना के ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद एक भी बार भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया, right? And then stock देखिए आज कहां से कहां, although it's came down, but again it didn't sustain below the neckline. This area is a neckline, right? So this is a buy stock. I hope you understand कि हम डबल बॉटम को कैसे देखते हैं. अगेन चार्ट जो हम टारगेट्स लेवल, मैंने अगेन देखिए टारगेट सब में सेम कैलकुलेट करते हैं, ये लोअर बॉटम, ये हायर बॉटम, इसका डिफरेंस विल ऐड इनटू हायर बॉटम. अगर ये 200 रुपए पे बना है और ये 300 रुपए पे बना है, इट्स मीन डिफरेंस इज 100 रुपीज, तो 300 प्लस 100 इट्स मीन 400. तो आई विल बाय दिस स्टॉक एट दिस लेवल फॉर द टारगेट ऑफ 400. तो जहां भी मेरा 400 होता है, आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. Next is channel breakout is a very common breakouts. Channel breakouts में हमेशा क्या होता है, एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है, और जब भी वो चैनल का ब्रेकआउट आता है तो हम बेसिकली आइदर साइड, जब तक इस एरिया में स्टॉक है, विल नॉट बाय. अगर बाय भी करना है, ऑलवेज वी प्रेफर कि हम इसे बॉटम के आसपास बाय करें, इस बॉटम के आसपास भरें, अनटिल अनलेस एक फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स हमें नहीं देखने को मिलता है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड कि चैनल ब्रेकआउट, ये देखिए आईसीआईसी बैंक का है, लाइव चार्ट है. ICICI Bank is gone up but didn't cross, again it's came down, again is gone up but didn't cross.
this area, right? Again it's came down. या तो हमें यहाँ buy करना है या तो हमें यहाँ buy करना है. Understood? या तो हमें lower slope of the channel buy करना है या तो हमें breakouts पे buy करना है. And when stock has given this breakout, then stock is continuously going up, right? So we need to understand what is channel, what is double top, what is double bottom. We need to clarify. देखिए charts के through हमें ये बहुत clarity मिल जाती है कि हम कहाँ पर किस stock को buy करना है. Right timing is very important. Not even stock market, even in every sense. Life के हर part में timing is very important. So through the charts and through the pattern analysis, we can predict the stock, we can predict any financial instrument which is tradable, right? We should buy at a right time. So through the charts, it's give you the higher probabilities to achieve a returns on a higher side, right? So I hope you understand what is a channel breakout, and this topic is over now. I hope you understand कि हमें कब कहाँ पर किस स्टॉक को बाय करना है. These are some pattern. देखिए we cannot discuss all the patterns. There are a lot of patterns, right? But these are some pattern. अगर आप इन्हीं patterns पे थोड़ा workout करेंगे, इन्हीं patterns को थोड़ा analyze करेंगे, तो वो patterns आपको समझने में आसानी होगी, and then you can easily take your trades, right? And obviously you can take our help also, right? कि आप हमसे फोन करके या जैसे भी है आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में कहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, कब ब्रेकआउट दिख रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि चैनल ब्रेकआउट क्या है, डबल बॉटम क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है, राइट? और एग्जांपल्स के हम साथ ही हम लोगों ने सारा सेट किया है. सो दिस इज ए सक्सेसफुल ब्रेकआउट. देखिए ये अभी रिलैक्सो में बना था जो हमने अभी दिखाया. देन अदानी पोर्ट में ये ब्रेकआउट्स बने हैं. एंड समटाइम इट्स हैपन कि जैसे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट लेवल ही उसके लिए सपोर्ट लेवल बन जाता है. देखिए दिस एरिया इज ए ब्रेकआउट लेवल, राइट? देन अगेन इट स्टॉक केम डाउन, बट इसके नीचे ना जाके स्टॉक. सो जो जब ब्रेकआउट लेवल बनता है स्टॉक के लिए, वो हमेशा स्टॉक के लिए अगेन सपोर्ट लेवल बन जाता है. तो जब भी अगर स्टॉक में किसी रैली में हमसे स्टॉक मिस हो गया हो और स्टॉक को हम नहीं बाय कर पाए, सपोज ये हमारा रिलैक्सो का एग्जांपल है, इसमें हम नहीं बाय कर, तो अगेन दोबारा स्टॉक जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर ए बाय, राइट? I hope you understand what is breakout and breakdowns. So this is all from my side, right? And now we should start a Q&A session. Please drop your question, right? If you have any queries, then I'll give you your answer, right? समृद्धि जी का क्वेश्चन है, इज द सॉफ्टवेयर फैल्कन ए पेड सॉफ्टवेयर? Yes ma'am, it's a paid software, and we also provide this software in a very reasonable rate, right? So if you want to buy this software, so you have to contact us, right? So but it's a paid software. Yes, it's a paid software. And सुखद मित्तल जी पूछते हैं जस्ट मोमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट्स? सर जब हम ब्रेकआउट्स की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है ना कि व्हेन टू बाय दिस स्टॉक. आई मीन इफ यू टॉक अबाउट एनी पैटर्न्स, आइदर डबल टॉप, डबल बॉटम, आइदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, either symmetrical pattern, either ascending channel. So हमने breakouts के लिए और neckline भी सबने खींच के दिखाई थी आपको अभी कि at what level we should buy this stock, right? So जब हमारा किसी भी stock का breakouts हो जाता है तो उसके बाद ही हमें खरीदना चाहिए जब हमारे neckline के ऊपर आ जाता है. I hope अभी हमने पूरी presentation में वही दिखाया है कि कौन सा breakout level है और कहाँ पर किस stock में किस level पे हमें entry करनी चाहिए. जब तक consolidation है, जब तक वेट करना चाहिए. अगर कंसोलिडेशन एक चैनल में हो रहा है तो दो ही तरीके हैं बाय करने के, या तो लोअर स्लोप ऑफ द चैनल ट्राई करना चाहिए बाय करने के लिए, या तो ब्रेकआउट्स पे बाय करना चाहिए.
राकेश कपूर जी का क्वेश्चन है, सर इन द interim please also add a piece about best combination tools to overplay on a charts, RSI and MACD, so both on the so forth. Rakesh ji, yes, definitely we'll take another session on the MACD and RSI. This session was only about the chart pattern, right? So हम MACD और RSI पे definitely will take another session. उस पे हम उस टाइम बात करेंगे, right? एक मिनट. So just a moment, I'm just reading this. Please advise on Imami. Samriddhi ji का क्वेश्चन है, it been in the lower range for a long time. समृद्धि जी, अगर आप इमामी के बारे में पूछ रही हैं, लेट मी चेक. Ma'am, I would suggest you should hold this stock, right? Because the stock has moved out from the range. See this area. Understood. Yeah, this area is a consolidation zone, but I would say you should hold this stock. Okay, this area is quite short-term resistance, 460, 470. Because आप ये देखिए पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो previous high was this one, right? So I would say कि you should hold it, but another it can take some consolidation at current level, right? So this area is a short-term resistance. When this stock will cross 460, 465, then it can touch another high, another all-time high, I would say, right? So, but still, now trend is up, you should hold this stock. So, how many patterns to be looked for confirmation on a single stock? Sir, देखिए, how many patterns to be look for confirmation in a single stock? सर बेसिकली राकेश जी का क्वेश्चन है, सर देखिए पैटर्न तो वो एक ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में एक साथ दो पैटर्न बन जाए. And when we need to identify which pattern is this, right? So पैटर्न ऐसा नहीं है सर कि एक स्टॉक में कभी एक साथ दो पैटर्न बन जाएगा, या तो उसमें बुलिश पैटर्न ही बनेगा या बेरिश पैटर्न बनेगा या चैनल बनेगा या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा या हेड एंड शोल्डर बनेगा. तो वो हमें उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उस पे बेसिकली ट्रैक करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना है. सौरभ हरित जी बोल रहे हैं, थैंक्स सो मच फॉर योर एफर्ट्स, रियली नाइस, काइंडली शो यस बैंक चार्ट्स, yes bank charts of past few months. Sir, yes bank, I would say yes, the stock has already fallen so much almost, so continuously stock in a downtrend, sir. This is a yes bank chart, and the uh, stock is continuously going down, but now this area already stock came down to 10 rupees, 6 rupees, right? And again it's trying to reverse, right? But still there is no confirmation of uptrend, right? Until unless again if stock will cross this area 2022, then again we can might some pullback up to 28 rupees, 30 rupees, right? So now I would suggest you should hold this stock because value is nothing in this stock, right? And until unless but there is no sign of buying as of now, right? But again this stock will cross 20-21 rupees again, so I would say that again it can move up towards the 28 rupees, right? So short term targets is 28 to 30 rupees. So this area is a very major hurdle for the stock. So I would say कि might be 20-22 रुपए के ऊपर स्टॉक आपका 30 रुपए तक आ सकता है, but majorly
मेजर बाइंग इसकी 30 रुपए के बाद ही आएगी. And there are a lot of questions basically, but I think now we should end this topic. And another question is Ravi Pundir. What pattern appears in Bharti? Sir, Bharti is also looks good at current level because I am tracking this stock. And see, if you will see this, see, it's also shows like inverted head and shoulder kind of pattern, right? See, if you will see this shoulder, then again it's a head, and then again it's a shoulder. And this area was earlier breakout, right? This area was earlier breakout. So I would suggest you should hold this stock, and expected target is almost 570 580 rupees, right? Because this was the breakout level. 490 was a breakout level, and bottom was 395 and 400 around. So its target is coming around almost 580 rupees. So I would suggest you should hold it. You should hold it at least for this target. 580 590 is expected target in this stock, and please hold it. Pavnish Ahuja ji ka Scots for short term. Sir, Scots, see, Scots is very looks good at this level because see, this was the earlier consolidation. Stock has correct down from the upper level, and again it's came to the support level, right? और कल ये गैप अप खुला भी था स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये देखिए यहाँ से स्टॉक ने दोबारा से कंसोलिडेशन को ब्रेक मतलब कंसोलिडेशन जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वहां से चलना शुरू किया है, राइट? तो आई वुड से इट्स a buy until unless this level doesn't break, right? So it's a buy. And Saurabh ji पूछते हैं, just a moment sir, there are a lot of questions. I cannot cover all the things, but I'll try कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूं. Thanks and regards sir. We predict 1 year and 2 year targets of Yes Bank on the basis of last year's charts. Thank you Pavnish ji, thank you Rajesh ji, Rakesh ji, and now we'll close this session, and I hope you understand, you like this session, and please हम ये वीडियो बेसिकली हम लोग अपनी यूट्यूब चैनल्स पे भी ये वीडियो डाल देंगे. थैंक यू रिंकू जी, थैंक्स फॉर द सेशन, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, and definitely we'll take another session on MACD, RSI, and another lot of topics are there, right? So if you like this session, तो please आप लोग next session भी attend करिएगा, and thanks from our side. Thank you so much.